if I take this one, if I remove hydrogen from B and C, if I remove hydrogen from B and C, what will you get? Let me what? Copy it. Complete thing in a new file. Next, can we directly write bond line? If I remove hydrogen from B and C, what will you get? This one. If I remove from A and C, what will you get? This. Everyone got it? Hello. मिला भाभी का? मिला ही वाला? भाभी को होमवर्क किया हो? Yes, sir. ये मिला आपको AC से निकालने के लिए हाइड्रोजन वाला? Yes, sir. If I remove from A and D, you will get this. If you remove hydrogen atom from A and C and connect those two carbon, I will show you how. Let me show you here. CH3, CH2, CH2, CH3. We remove what? A and C. Now, carbon and hydrogen are both the carbon is having one hydrogen less. What will you do? You will connect this two with by a bond. So that is represented as this one. Similarly, here, if you remove the hydrogen atom from the terminal carbon, then just connect this, you will get this one. Okay? Now, if I took the first example and will try to remove the hydrogen atom again, you will get, what will you get? CH, triple bond, CH2, CH3, and the representation is what? This 1, 2, 3, 4. If I remove from B and C, this you will get, and the representation will be this. A and C. Let's draw the molecule first. This, and if we remove one hydrogen from here, you will get what? A cyclic structure. So the structure will be simply, don't assume कि आपको समझ में आना ही चाहिए. अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पूछिएगा. AD, CH2, CH, CH2, CH3. We'll remove hydrogen from here and here. Can connect this by a bond. So the bond line will be what? This. Can you tell me what is the formula of all these molecules? The molecular formula will be what? C4H6, because we have removed two hydrogen atoms from the given molecular formula. What is the formula of all this? C4H8. It means all are what? Isomers. Understood, everyone? Bhavika, clear? Disha? Kunal? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Did you get all the structures? हाँ बोलो. सर आपने जो एकदम फर्स्ट वाला होमवर्क दिया था ना, ड्रॉ ऑल अल्काइल ग्रुप्स. हाँ. Yes. Yes. सर उसमें 1,3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के बाद वो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, वो नहीं समझा. एक मिनट. लास्ट क्लास में दिया था कि लास्ट टू लास्ट में दिया था? हाँ सर, लास्ट क्लास.
सर सेकंड या थर्ड पेज पे रहेगा वो। हाँ, लेट्स मी चेक। ये वाला ना, 10 यस सर, इसमें 3 It is- डिग्री हाइड्रोजन निकालने के बाद स्ट्रक्चर का हाँ नाम क्या होगा? हाँ, एक how many different types of hydrogen are there? 4। ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। डिफरेंट कौन कौन से हुए? टोटल नंबर ऑफ different hydrogen will be 1 plus 1 plus 1 plus 1. This is 2 degree, this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree. So if I remove the hydrogen from the first carbon, you will get this. So if I number it 1, 2, 3, 4, 5, it should be named as what? 3-methyl ई मिथाइल पेंटाइल। pentyl. One is over. Second is, if I remove the Sir, what is the name of the original structure? क्या बेटा? What is the name of the original structure given? That is alkane na. I didn't tell you how to name it, but you can still name 3-methyl Okay. pentane. पेंटेन। It is simple only. You can use your normal जो आपने जानते थे, और नहीं भी जानते कोई इशू नहीं. I didn't tell you, so don't worry about it. I told you to name the alkyl group. This numbering कर लें 1, 2, 3, 4. You have to find the longest carbon. Still I didn't tell you the rules. I just told you how to apply it, जो आपने सीख लिया है. क्या हुआ बोलो? 2-methyl butyl. कैसे? 1, 2 1,2 dimethyl butyl, है ना? Next, if I remove from tertiary carbon, and try to number it 1, 2, 3, it should be 1. देखो 1 पे क्या है? मिथाइल भी है. 1 पे क्या है? इथाइल भी है. तो मिथाइल पहले आता है डिक्शनरी में या इथाइल पहले आता है डिक्शनरी में? इथाइल मिथाइल। इथाइल. अरे इथाइल इथाइल डू आएगा या गो आएगा पहले? डी आएगा ना पहले अल्फाबेटिकली. 1 इथाइल. तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, वी राइट द नेम ऑफ दैट फर्स्ट. नंबर कोई मतलब नहीं है. 1, 2 उल्टा भी हो सकता था, बट 2 नहीं. 1, 1, 1 इथाइल 1 मिथाइल. क्या होगा? 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल. तो अल्फाबेटिकली जो पहले आते हैं वो उसको हम लोग पहले लिख देना. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, and it is this. From where you have to start the numbering. 1, 2, 3, 4. तो क्या लिखें इसका नाम? 2 इथाइल, बोलो, ब्यूटाइल. ब्यूटाइल। सारे एग्जांपल क्लियर है बेटा? दिशा क्लियर बेटा? सारे एग्जांपल? यस सर, थैंक यू। ओके ओके. सब भी सारे हो गए ना? Now you have to do this one. Now draw ESF, CSF and BSF for the following molecule.
ये बता दिया था मैंने क्या आपको सारे एग्जांपल्स? ये होमवर्क था, होमवर्क था, होमवर्क था ना? हाँ बेटा होमवर्क। चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला कौन सा है? एन पेंटेन। एन पेंटेन कैसा होगा? एक्सपैंडेड। 5 कार्बन बना देंगे। एन का मतलब स्ट्रेट चेन। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। आई ओनली अज्यूम दैट कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है, जो हम बता रहे हैं उसमें से आप अप्लाई कर रहे हैं। लगता है फिर भी समझ में नहीं आया, प्लीज पूछिए। आपको लगता है नो है फिर भी पूछिए। ये हो गया, क्या हो गया? ईएसएफ हो गया। पहला बनाऊंगा ईएसएफ, फिर सीएसएफ। सीएसएफ हैज मेनी ऑप्शन। क्या बना दूं बताओ? एक बना देता हूँ, एक मेथड से कोई बना दीजिए 10। और बॉन्ड लाइन क्या होगा? 10। पी क्या था? आइसोब्यूटेन। व्हाट इज आइसोब्यूटेन? दिस वन। This one. Even you can also write this. ये भी लिख सकते हैं। और bond और expanded this। C में isopentane। This is isopentane। expanded कर लेंगे। D neopentane। expanded नहीं बना रहा दिशा, चलेगा ना? हेलो। हाँ सर। ओके। क्योंकि मुझे मूड ही नहीं बनाने का। आपको भी धीरे धीरे मूड नहीं होना चाहिए। ये देखिए दिस। बहुत लोग क्या करते हैं, एच को नहीं दिखाते, पर बेटर कौन सा है? ये वाला। जब भी हाइड्रोजन हेटेरो एटम से अटैच हो और कार्बन इज ऑल्सो अटैच टू हेटेरो एटम, तो कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होगी उसको भी दिखा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन सा एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ एग्जांपल नहीं है, इथेनॉल। हाँ शायद बताया भी था आपको। इथेनॉल। इथेनॉल कैसा होगा? CH3 CH2OH। इवन ऑल्सो यू कैन राइट ETOH। ETOH शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिंबल है। बॉन्ड लाइन कैसा होगा? 10। इसमें कितने कार्बन बनाया हमने? कितने कार्बन बनाया? यहाँ पे कार्बन है क्या? नो सर। नहीं। नहीं। तो 2 कार्बन बनाया हमने, ठीक है। H फॉर्मिक एसिड, H C डबल बॉन्ड OH और HCOH। अब देखो यही समझाना था मुझे। देखना C किसके साथ अटैच्ड है? हेटेरो एटम के साथ। तो जो हेटेरो एटम के साथ अटैच्ड कार्बन होगा, देन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन, प्लीज शो इट। देखिए yes। तो हमने दोनों हाइड्रोजन को दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिया। हेटेरो को तो दिखाना ही है। व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू हेटेरो एटम, द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू हेटेरो एटम आल्सो शो।
so that it will look good, clear दिखेगा सब कुछ. Done. You must have completed the homework. बस मैं complete आपके सामने कर दे रहा हूँ. Now, next है draw CSF and BSF for the following molecule. क्या होगा बताओ? CSF and BSF. CSF कैसा होगा? CH3, CH, CH, CH3. इवन लोग इसको ऐसा भी दे देंगे CH3, CH, CH, CH3. तो समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है. दिस इज CSF और बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? दिस वन. ब्यूट 2 आइन, इसमें CH3C और क्या लिख सकते हैं? CH3 और डॉट नहीं भी लिखेंगे, डॉट देंगे या डॉट नहीं देंगे कोई मतलब नहीं है. तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, समझ में आना पड़ेगा, बिकॉज बीच का कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से 1 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो राइट से कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे? वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे. So they will mention like this, and bond time will be this. Next, CH3, CH2, Cn. Bond line. नीचे ही बना सकते थे, जस्ट बना दिया तो लिखा. How many carbon is there? 1, 2, 3, है ना? And I told you wherever triple bond is there, you should put what? बोलो. Linearity. D का देखिए, D में क्या लिखेंगे? CH3, 10 और क्या लिखेंगे? CH3, CHO. Aldehyde. Hydrogen attached to carbon which is further attached to heteroatom must be what? Shown. दिखा दिया मैंने. Formic acid. अब ये ऑलरेडी ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2O भी लिख सकते हैं, H2CO भी लिख सकते हैं, सब एक ही है. HCHO भी लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होता है HCHO. All are same. Here you have to put like this. एक और नाम दे देता हूँ. ओके, ऐड कर लीजिए अपने नोट में, थोड़ा अलग लगेगा. इथाइल एसीटेट लिखिए नोटबुक में. कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में CH3CO ET भी लिखा रहेगा. बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ऐसा, दिस. एक और एसिटिक एनहाइड्राइड.
this one. इसको हम लोग AC2O भी लिखते हैं। देखो अभी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि CH3CO को शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम पे लिख देते हैं एसिटाइल, कॉमन नेम है, कॉमन नेम, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको AC। रिटर्न एज AC। देखिए कुणाल, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एक डिफिकल्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, जस्ट इंट्रोड्यूस का एग्जांपल है, CH3CO को बोलते हैं। और एक और लिख देता हूँ, RCO को जनरली कहते हैं असाइल, सब कॉमन नेम है, असाइल जनरल नेम हो गया। इसको बोलते हैं बेंजोइल। सभी क्या है? कॉमन नेम। नोट कर लीजिए। सबने कंप्लीट कर लिया था ये होमवर्क? उन्होंने कंप्लीट Yes, कर लिया sir. था? क्या बात है उनका, बहुत बढ़िया। यस सर। अभी जो एग्जांपल दिया उसको ऐड कर लीजिए नोटबुक में। सर ये कॉमन IUPAC में यूज होते हैं? नहीं 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 नहीं, नॉट इन IPS, नॉट यूज्ड इन IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एनी मोर होमवर्क इन द लास्ट क्लास? यही था ना सिर्फ? Yes, sir. यस सर। ठीक। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ BSF for the following molecules. Sorry. फर्स्ट का क्या होगा? 10। Yes, sir. है ना? और थर्ड का और सेकंड का? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो पिलाज, बहुत दिनों बाद, अब इतने क्लास हो गए, थोड़ा आपको अब काम दे रहे हैं, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स यूजिंग ओनली बॉन्ड लाइन, ठीक है ना? ड्रॉ ऑल पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? Connectivity of atoms will be different in different molecules. Connectivity of atoms
would be different in different structures. To draw all different structures of alkanes having formula first CH4 C2S6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16. In future we will name the compounds also. अभी आपको सिर्फ ड्रॉ करनी है. एक दो मैं ड्रॉ करता हूँ. फर्स्ट को ड्रॉ करता हूँ. हम बोलो सर आप मजाक क्यों करते हैं, फर्स्ट तो हम भी बना लेंगे. फर्स्ट क्या होगा? हाँ, यूज ओनली व्हाट PSR. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन ही बनानी है. तो मुझे बताओ फर्स्ट का क्या होगा? डॉट। डॉट. डॉट C2H6 का क्या होगा? लाइन. लाइन C3H8 का देखो. Now C3H8 में 3 कार्बन है. First of all, we'll try to make the longest carbon chain of molecule. So 3 कार्बन का, if I want to draw 3 कार्बन वाला chain, तो ये बन जाएगा. But if I try to make the 2 कार्बन chain, तो थर्ड को कहाँ अटैच कर सकते हैं? एंड पे अटैच कर सकते हैं, ऐसे अटैच कर सकते हैं. तो इट इज सेम एज व्हाट प्रीवियस वन. यस तो टू का कभी बन ही नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल. तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर इज पॉसिबल? वन ओनली वन इज पॉसिबल. नाउ मूव करते हैं डी पे. एक और आपको मैं हेल्प करता हूँ. C4H10. C4H10 में if I took 4 carbon chain will be what? Like this. Longest तो एक ही होगा. This is what normal alkane है ना. But if I want to make the 3 carbon chain, ऐसा बनाया. मिडल If I put at the end, यही बन जाएगा है ना. यस If I put at the first end, फिर से वही बन जाएगा. कुछ नया तो नहीं बन रहा. But if I put in the middle, then I can get different, because if you try to count the number of carbon, 1 2 3 4, but here you will not get 4. कैसे भी 1 2 3 you will not get 4. It means they are different. So if I repeat the same molecule again, जो समझाने में लगा दिया मैंने आपको टाइम. तो if I repeat the structures, simply क्या लिखेंगे? कितने बने? बोलिए. 2 ही बने. टू. Only 2 is formed. तो आपको ऐसे ही अगर 3 का और बनता तो एक और हम यहाँ बनाते. तो अगर 3 कार्बन के 2-3 बन रहे हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. ठीक है. C5H12. बेटा जरा सा फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्लास में. मुझे किसी और से सुनना नहीं चाहिए सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा रहे हैं, बहुत हाई फाई चीजें पढ़ा रहे हैं. वो हर्ट करता है. मैं क्लास में जब पूछ रहा हूँ आपसे, किसी को भी कहीं भी रोक के पूछिए. अपने नोट्स को बार बार देखिए, पुराने नोट्स को बार बार देखिए. जब भी क्लास में बैठे हैं स्टार्टिंग से एंड तक देखिए अपने नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को, नॉट PDF को. PDF इज ओनली वन टाइम. अगर कुछ छूट जाता है देन ओनली यू कैन चेक इट. समझ रहे हैं? तभी आप देखेंगे PDF को, अदरवाइज PDF का कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट बार PDF देखेंगे, अपडेट कर लेंगे नोट्स में, आगे बढ़ जाएंगे. राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. लिखिए. और C5 C6 C7
ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करिए. आई एम गिविंग यू 10 मिनट, 10 मिनट लीजिए. एंड डू वॉट एवर यू कैन. ओनली मेंटेन वर्ड कि कार्बन पे 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए. अच्छा, इसमें कार्बन पे कितने बॉन्ड है थोड़ा बताना तो. इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? सर 4 4. बिकॉज 1 तो दिख रहा है और 3 क्या है? ऑब्वियस है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ. बट अगर मैं ऐसा बना दूं तो यह स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नो. क्यों? बिकॉज इस पे कितने पॉइंट बॉन्ड हो गए? 5 हो गए. तो कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं. हाँ, प्लीज राइट इट. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम टू फिनिश C5, C6, C7. Even you can take 15 minutes also. But point is what? You should give me all the possibilities. ऐसा नहीं सर 2 बन गया सर. देखिए देखिएगा. अब C5H12 देख लेते हैं. 5 कार्बन, सिंपल. दिशा कितना मिला C6 में? 4 सही नहीं है. कितनों का हो गया C6? कितनों का हो गया? हाथ रेस करिए. Got 5, sir. हाँ सर, अनिल सही है. कितनों का सर हो गया? हाथ 5 रेस करिए. सर कौन से वाले में? C6 वाले में. सर C6 5. सही है ओमकार. कभी यस अभी सर 5 कुछ दिनों में बोलूंगा अपना जो आपने ड्रॉ किया है ना उसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे व्हाट्सएप पे. अभी नहीं, धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे. पहले आप फिर जो जिसका बन जाता है फटाक से भेज देना. मैं देख भी लूंगा, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. ना 4 कार्बन में ध्यान देना. कैन वी अटैच एट द एंड? अच्छा, 2 एग्जांपल सीखने से हमें क्या मिला कि वी कैन नॉट अटैच एट द एंड. इट विल नॉट गिव एनी न्यू स्ट्रक्चर. टू गेट द न्यू स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट द कार्बन इन बिटवीन. तो कहाँ पुट करेंगे बताइए? यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. आपको पता चलना चाहिए कि सेम है. 3 कार्बन. अब मेरे पास 2 कार्बन है. अगर मैं 2 कार्बन को एंड में पुट करूंगा तो प्रीवियस वाला मिल जाएगा. तो एंड में तो नहीं पुट कर सकते. कैन आई पुट इन द मिडल? ऐसा. इज इट राइट श्रीनील? Yes, sir. नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही है ना इसके जैसा. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज चेक करिए हम क्या बना रहे हैं. आई वांट टू मेक 3 कार्बन चेन. हम 3 कार्बन का ही चेन चाहते हैं, उससे बड़ा चेन बने ही ना. तुम 2 कार्बन लगा देंगे अगर, तो बताओ कितने कार्बन का चेन बन गया? इफ आई काउंट 1 2 3 4, यहाँ भी कितने बन गए? हम सोचे थे 1 2 3 बनना चाहिए था. बन कितना गया? 4. एंड दिस ऑल्सो आर व्हाट? सेम. तो ये हमारा काम नहीं आ पाया. लेट्स अगेन ट्राई. वी कैन पुट द 2 कार्बन separately. Now I think we got the answer. 1 2 3 1 2 3. किसी भी जाएंगे तो 1 2 3 मिलेगी. मीन्स फिर मैं रिपीट कर लूं. मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज फ्रेश आप देख पाएंगे कितने बने हैं. तो समझाने पे चला गया टाइम हमारा. तो हाउ मेनी डिफरेंट यू गॉट इन 4 में? कोशिश तो किया था मैंने 2 बनाने का, पर 4 2 बना नहीं. आई गॉट ओनली 1. 10. एंड 3 कार्बन में 10. 3 कार्बन में एक ही मिले, 2 नहीं बन पाया. Now if I move to 6, 7 में कितना मिला श्रीनील? अच्छा, सर इसमें में रुको पहले रुको. इतने लोगों में से सिर्फ 2 ही बंदों ने कंप्लीट किया है. 6 वाला भी. ओनली C6 पूछ रहा हूँ, C7 में नहीं पूछ रहा. प्लीज रेज योर हैंड. आई वांट टू सी हाउ मच एफर्ट यू आर गिविंग. आई कैन ओनली सी फ्रॉम योर रेजिंग योर हैंड ऑनेस्टली. और टीचर से हमेशा ऑनेस्ट रहिए. नहीं किया तो नहीं किया, क्या दिक्कत है इसमें? तो C6 वाला भी सबका नहीं हुआ. भाभी का नहीं हुआ C6 वाला.
सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन देयर। देखिए अगर आपका नाम ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या तो आप बड़े आदमी हैं या तो आपको कोई मतलब नहीं है क्लास से। हम दो ही बात कह पाएंगे। और थर्ड, हो सकता है कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो, स्टिल आपकी आवाज थोड़ी सुनाई देना चाहिए। कुणाल, हाँ यस सर कंप्लीट है। तो कुणाल का नाम लिया मैंने, फट से रिस्पॉन्ड मिला। तो किसी का भी अगर मैं नाम लेता हूँ तो फट से रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि मेरा ऑडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है सर, सर मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है सर। ये आपको रेडी रखना है। समडे मेरा भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, बट नॉट एवरी टाइम। आप वन डिवाइस यूज कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही तरफ से कनेक्टेड हो, आपके फोन से भी कनेक्ट करोगे तो काम चल जाता है। अर्जुन, आर यू देयर? फर्स्ट दिन से अगर आप ऐसे हैं तो बताइए कैसे पढ़ पाएंगे? पढ़ना तो ऑनलाइन ही है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा अपनी तरफ से। माधवी, आर यू देयर? माधवी, कृतिका, यस सर। हाँ बेटा, बस जस्ट चेक कर रहा हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महक, यस सर। अथर्व, यस सर। अर्जुन अभी तक नहीं आया। अर्जुन, हाँ सर, हेलो। कहाँ थे आप? कितनी बार बुलाया मैंने आपको, बताओ बेटा। सर वो माइक्रोफोन चेंज कर रहा था। वो मैं जानता हूँ, यही सब एक्सक्यूजेस आएंगे, आई नो दैट। व्हाई आर डूइंग दैट ड्यूरिंग द क्लास? यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द क्लास ओनली। यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड 2 क्लासेस टुडे, दिस इज योर 3rd क्लास। देखो आप जो एक्सक्यूज देंगे वो मुझे एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। आई ओनली वांट टू लिसन योर वॉइस, दैट्स इट, इन वन कॉल। सेकंड कॉल करनी पड़ रही है, मतलब आपकी गलतियां हैं, कुछ आप लापरवाही कर रहे हैं। समटाइम्स मे बी कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। दिशा अपने विलेज से पढ़ रही है, हमेशा रेडी है आंसर के लिए। साहिल, Yes, sir. सलोनी, सलोनी, आर यू देयर? सलोनी, हेलो। देखिए अब बताइए कैसे क्लास में सुनेंगे जब आपका हम नाम ले रहे हैं। आप अच्छा बताइए, मैं ही नहीं बोलूंगा श्रीनिल, तो आप पढ़ पाएंगे? बताइए श्रीनिल। नहीं सर। बट मैं आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मेरा मूड है नहीं बोलने का। आप मेरा नाम सर, आप मुझे बुला लीजिए कितनी बार भी, सर पढ़ाइए पढ़ाइए, मैं नहीं सुन रहा, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। कुणाल क्या हुआ तुम्हारा? तुम ऐसा इमोजी इमोजी मत दिया करो क्लास में। कुणाल, डोंट यूज बेटा, क्लास को हम बिल्कुल जेन्युइन रखिए, क्लास में कुछ और नहीं। क्लास में 1.5 घंटा आपका अपना है, उसको अपना ऐसा बनाइए कि 1.5 घंटा के बाद क्लास की जरूरत ही ना पड़े, बहुत 10-15 मिनट पड़े रिवीजन करने के लिए। दैट शुड बी इफेक्टिव ओनली। अवैध, यस सर। सुमित, सुमित, यस सर। श्रेया, श्रेया, यस सर। जैन, यस सर। सब सुन रहे हैं। तो किसने नहीं सुना आज? साहिल सुने? साहिल, यस सर। माधवी, यस सर। कहाँ थे आप? आपका भी नाम बुलाया था मैंने, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिस्पॉन्ड नहीं किया था, क्यों? क्या रीजन है? देखिए बेटा, स्टार्टिंग में ही टीचर लोग केयर करेंगे, जब आप ही अपना केयर नहीं करेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्लास में आपका नाम बुलाते नहीं रह सकते ना, सिंपल सी बात है। हैव टू टीच। तो देखो अगर मैंने पूछा, अभी मैंने पूछा हाथ रेज करिए, तो बस 3-4 बच्चों का हाथ रेज हुआ, रिमेनिंग का हाथ रेज नहीं हुआ, मतलब दे डिडंट कंप्लीटेड। अब ये नहीं पता करूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? मैं तो अपने फ्लो में पढ़ा दूंगा। अच्छा, सेम थिंग बेटा कुणाल, इफ यू वांट टू लर्न विदाउट माय डिस्कशन, यू कैन स्टडी इन यूट्यूब आल्सो। यूट्यूब में सारे वीडियो मिलते हैं ना, बताओ। यस सर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास? क्लास का इंपॉर्टेंस है डिस्कशन, आपस में बातें करना, प्रॉब्लम शेयर करना। वो सब आपको टेक्नोलॉजी से नहीं मिलेगी।
Even this is also not good, fruitful, but that is only the option now. Otherwise क्लास जो ऑफलाइन क्लास होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ह्यूमन टच. आप हमसे बता सकते हैं प्रॉब्लम, हम आपसे पूछ सकते हैं, दिखेगा फेस टू फेस कि हाँ आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं गाइड करूंगा. These are the only things. Otherwise, all good lectures are available in YouTube also. यहाँ आप आपकी गलतियां चेक कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि आप अपना होम कंप्लीट करिए सॉल्विंग, आप व्हाट्सएप कर दिए, मैं तुरंत देख लूंगा. तो ये जो कनेक्टिविटी है ये टेक्नोलॉजी से नहीं मिलती है, ये इंसान से ही मिलेगी. अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब में, वीडियो, मेरे पुराने नोट्स हैं वो हमसे ले लीजिए. फिर क्लास की जरूरत ही क्या है? तो नोट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. नोट्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट व्हेन यू हैव अटेंडेड द लेक्चर प्रॉपरली. तभी आप नोट्स को यूज कर सकते हैं. वीडियो लेक्चर में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कभी कभी जरूरत पड़े तो आप रेफर कर सकते हैं. वही कभी कभी कब, जब आप क्लास में डिस्टर्ब हो गए, अटेंड नहीं है सेशन में, तो जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. वीडियो की क्या जरूरत है, क्लास से सब सीख ही गए. तो 3 कंपाउंड मिले है ना. कैन यू नेम कुणाल, फर्स्ट को क्या नाम देंगे? कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ. एन पेंटाइल. पेंटाइल कैसे बच्चा? Sorry sir, pentane. Yes sir. आइसोपेंटेन. और आई एम नॉट टीचिंग एनी वन पर्सन. फॉर मी वही बच्चा इंपॉर्टेंट है क्लास में जो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसी का इंप्रूवमेंट होगा ना. कुणाल को पढ़ा के क्या करूंगा? दिशा को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ लेगी. क्लास में समझाता जाऊंगा, वो पढ़ती चली जाएगी, होमवर्क कंप्लीट कर लेगी, काम खत्म. समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको. अर्जुन अभी माधवी ने रिस्पॉन्ड किया, उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी. जिन्होंने हाथ रेज नहीं किया उनको जरूरत पड़ेगी. जिन्होंने एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया उनकी जरूरत पड़ेगी. अभी जिन्होंने हाथ रेज किया, सृणिल को पढ़ाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ, ही इज वेरी अटेंटिव इन द क्लास. तो वो तो पढ़ ही लेंगे हमसे, कैसे भी छीन छान के पढ़ लेंगे. नहीं, मुझे पढ़ाइए सर, मुझे होमवर्क कंप्लीट चेक करिए, मेरे क्वेश्चन देखिए मेरा सही है कि नहीं सर. वो लोग कर लेंगे. दिक्कतें आएंगी जिन्होंने हाथ रेज नहीं किया, और उन्हें कनेक्ट होना चाहिए फैकल्टी से कि बताइए सर. ऑल दी फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. जब आप नहीं कहेंगे हम कैसे बता पाएंगे? हम तो बार बार पूछ ही सकते हैं ना, और हर क्लास में तो नहीं पूछ सकते. फिर पढ़ाएंगे कैसे सर? हमारा एटलीस्ट 10 मिनट्स का डिस्कशन चला गया देखो ऐसे करने में. चलिए, इसका नाम Neopentin. तो आपने कुछ कुछ नाम भी सीख ही लिया है. अगर आईपीसी बता दिया होता तो आप आईपीसी भी कर लेते. सिंपल ब्रांच चेन का जो रूल होता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, नेम कर दीजिए, और जो लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको नाम दे दीजिए बस. बट विल नॉट टेल यू नाउ, विल डू लेटर. एफ C6H14, 6 कार्बन के. देखना सब लोग, बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है कुणाल. और क्वेश्चन में कोई अच्छा याद करना है कुछ क्या, कि कैसे मेथड है? कुछ मेथड याद करनी है क्या? बताओ कुणाल. No sir. जस्ट ब्रेक करनी है बॉन्ड को, कहीं और लगानी है. 6 कार्बन हो गए, 5 कार्बन बना दिया. वी कैन नॉट अटैच एट व्हाट एंड पॉइंट, वी कैन ओनली अटैच एट Yes. 10. अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे? Sir, Same. Same. तो नहीं जरूरत है ना. 2 मिल गए, 2 डिफरेंट, 4 कार्बन का बनाते हैं. 2 कार्बन लगाने, नाउ यू हैव 2 कार्बन टू अटैच. कैन आई डू लाइक दिस? बोलो, मैच कराइए, आइडेंटिकल मैच कराइए. बिकॉज आपको लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत से 2-3 डिफरेंट बनाए हैं, ऑल विल बी आइडेंटिकल. ऐसा भी हो सकता है. जैसे मैंने बड़ी मेहनत से भी 4 कार्बन का बनाया, 4 कार्बन चेन का बनाया, है ना. अलग अलग भी रख. है ना. Same है sir. ये दोनों किससे मैच कर रहे हैं? इससे. Yes sir. देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी क्या है बोलो? ब्यूटेन है. Butane. तो दिखेगा अलग अलग आपको, पर सब होंगे क्या? सेम. नाउ ये दोनों सेम. Sir, same.
कोई डाउट? No. नो सर। 3 का भी ट्राई करते हैं, 3 का ट्राई करते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट इन 3 कार्बन का ही होना चाहिए। अभी हमने 4 का ट्राई किया, एक वो कौन सा चेन बन गया? 5 का बन गया ना। 3 का ट्राई करते हैं। मेरे पास कितने कार्बन अटैच करने हैं अभी? 3। कैन आई डू दिस लाइक? कर सकते हैं क्या? यस। No, नो। sir. नो सर। देखो, आपको देखना है, मुझे नहीं बतानी है। No, sir. 5 bonds. 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो गलत हो गया। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस। यस सर। ऐसा कर सकते हैं क्या? सर सेम है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? बताइए। यस। सर सेम। सेम हो है जाएगा सर। वो। ये तो गलती हो जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है? इससे। देखो आप, ये किससे मैच कर रहा है? इसी से। और ये किससे मैच कर रहा है? इससे। देखिए, बड़ा मुझे मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं बहुत सारे बना दिया, पर 2 सेम हो गए, है ना? हेलो। यस सर। मतलब इफेक्टिवली है कितने डिफरेंट अगर मैं बोलूं तो? एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट हुआ, एक ये डिफरेंट हुआ, और एक। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स अगेन। अभी तक आईयूपीएसी नहीं स्टार्ट किया, आप सोचिए, क्योंकि हम आपको पहले फ्री हैंड बनाने के लिए प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। C6H14, तो 6 कार्बन you will be having only 1, 5 carbon you will be having 2, and 4 carbon you will be having this. Done? कितने मिले टोटल? ऑनेस्टली बताना किसको ये सारे आ गए? ऑनेस्टली सबको आगे? सारे ओमकार आया? same. ओमकार आया? यस सर, मुझे आया सर। उम्मेहनी, इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे बेटा आपका नाम? उम्मेहनी? उम्मेहनी। मेहनी सही है, बड़ा बड़ा नाम है। उम्मेहनी क्या मतलब होता है इसका? बताओ। Sir, Prophet Ali's daughter. तो नाम इतना टफ, मीनिंग भी टफ। चलिए अच्छा है, नाम बढ़िया है। सरनेल तुम्हारा हो गया था 5? हाँ सर। आकांक्षा तुम्हारा भी हो गया था? Yes, sir. बढ़िया। तुमने एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे? यही 5 बनाए थे, एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे? Sir, Extra दो भी बनाएंगे। same बन गए। हाँ, तो वो मतलब काउंट, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमने आपने बनाया तो 5 नहीं बनाया ना, आपने ज्यादा बनाया ना। हेलो, आंसर गलत हो जाएगा ना। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, तो आपने ये 5 बनाया, मान लिया मैंने ये 5 बनाया, पर अगर आप देखो इसमें इसमें हमने वो 5 बनाया है ना, इसमें हमने वो 5 बनाए हैं, इंक्लूडिंग रिपीटेड वन भी बनाया है, गलत भी बनाया है, टोटल तो बढ़ जाएगा ना, तो आंसर विल बी रॉन्ग। आई नीड एग्जैक्ट नंबर, जिसको एग्जैक्ट आया है 5 सिर्फ, कि मेरा 5 आया है, 5 डिस्टिंक्टिव है, नॉट रिपीटेड, उसकी बात कर रहा हूं मैं। किसी को आया? फ्रेंड आया था? ओमकार? हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया, Yes, मतलब वाकई बहुत अच्छा। मूव करते हैं 7 पे। अच्छा, कोई हाई फाई रूल लगने वाला है क्या, फॉर्मूला लगने वाला है क्या निकालने के लिए इसको? सिरिडल? नो। कुछ नहीं, आपका सेंस लगने वाला है कि कनेक्ट करनी है, अटैच करनी है, चेक करनी है कि डिफरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। That's it. अब देखो, या अगर इसमें गौर करो तो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे क्या है? दो कार्बन दिख रहे हैं। सेकंड पोजीशन में 2 कार्बन दिख रहे हैं, सेम ही हुआ ना, है ना? 7 पे आइए। डोंट लर्न ऑल द एग्जांपल्स, ट्राई टू ड्रॉ प्रॉपरली, लॉजिकली, कि कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, वही देखना है। C7H18 नहीं 16 कितने आए? 9. 11. 9 किसको आए? आकांक्षा? Yes, sir. अभी व्हाट्सएप करो फटाक से सारे स्ट्रक्चर।
बिलीव नहीं कर सकता। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। श्रीनिल तुम्हें कितना है? 7 सब भेजिए, जिन जिनको आया सब भेजिए, क्योंकि कोई 3 कह रहे थे, अभी 9 आ गया सडनली स्ट्रक्चर। आकांक्षा प्लीज चेक कि कोई रिपीटेड है क्या। अगर रिपीटेड है तो नो उसको सर। डिस्कार्ड। पक्का? हाँ पक्का। क्या बात है, भेजिए, व्हाट्सएप करिए। यस सर। 7 कार्बन को तो बना ही लेते हैं फटाक से। 7 कार्बन का कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स कार्बन का ही बना सकते हैं। 6 कार्बन कितने बन रहे हैं बताइए? 6 कार्बन कितने बनेंगे श्रेणिल? चलो मैं हाँ आपको सर। तरीका बताता हूँ बेटा, वो तरीका बताता हूँ। सर 7 स्ट्रक्चर्स मिले। 7 नहीं है आंसर, और ट्राई करिए। अगेन जिसको 7 भी आ रहे हैं चेक करिए रिपीटेड तो नहीं है, प्लीज चेक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा 6 कार्बन में कितना डिफरेंट कार्बन है बताओ? आकांक्षा बोलो, कितना डिफरेंट कार्बन है? कोई बताओ। ओमकार, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना सर वैसे मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे। कितना डिफरेंट कार्बन है 6 कार्बन वाले में बताइए? अभी कितने डिफरेंट कार्बन दिख रहे हैं आप? सर 2। गलत, सर 1 गलत, सब गलत है, सब पढ़ाई बेकार हो गई। कितने कार्बन है बताइए? 4 सब गलत है। 3। आकांक्षा सुपर एग्जैक्ट है। आकांक्षा थैंक बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू सर। मैंने अभी तक तो नहीं मिला मुझे इतना जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर रिपीटेड ही नहीं है। गजब, बहुत बढ़िया। बताओ इसमें कितना डिफरेंट कार्बन है आकांक्षा, तुम बताओ। अब तुमसे तुम्हें भी चेक करूंगा, बताओ कितने डिफरेंट कार्बन है? बोलो सब लोग। ये सर हमारा 3। 1 डिग्री 3। किसने कहा 3? सर ओमकार। इतना टाइम क्यों लग गया लेकिन मुझे मुझे बताने में समझ में नहीं आया। टाइप ऑफ कार्बन नहीं पढ़ा हमने क्या? 2 डिग्री 2 डिग्री बड़ा 2 है डिग्री सर। 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या है? सेम टाइप। हेलो, ये 2 Yes, डिग्री sir. और ये 2 डिग्री क्या है? सेम टाइप। यस सर। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या है? सेम टाइप। तो कितने डिफरेंट कार्बन हुए? 3 डिफरेंट हुए। कितने डिफरेंट हाइड्रोजन हुए? हाँ श्रीनिल देखता हूँ बेटा, अपने भेजा है, रुकिए। ये देखो सब फटफट फटफट सब बना के भेज, एक ही पेज में भेजो। आपको अगर मैं आकांक्षा का ड्राइंग भेजूंगा ग्रुप में, आपको शेयर कर दूंगा तो आपको लगेगा एक ही पेज में उसने बारीकी से सोच सोच के किया है। हाँ एक और चीज, गूगल का हेल्प मत लेना, तो फिर आप सीखेंगे कैसे? फिर तो आपको सोल्यूशन ही मिल जाएगी, क्योंकि गूगल आपको सब बता देगा। कभी रैंडम क्वेश्चन दूंगा तो फिर गूगल मुश्किल है बताना। तो जस्ट गिव योर अटेम्प्ट, बने नहीं बने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में परफॉर्म करनी है अच्छे से, क्लास में नहीं बनता है चलेगा, पर ट्राई टू लर्न हाउ टू अप्रोच दैट। तो 3 डिफरेंट कार्बन है तो 3 डिफरेंट हाइड्रोजन भी है। 3 हो गए। 3 डिफरेंट हाइड्रोजन भी हो जाएंगे। अब एंड पे लगा नहीं सकते? एंड पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। नहीं। तो बचे कौन से पोजीशन? 2 ही पोजीशन बचे ना लगाने के लिए। एक कार्बन को मोनो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मेरे पास 2 ही कार्बन, 2 ही पोजीशन बचे ना। आर यू गेटिंग इट? आई वांट टू पुट 1 कार्बन, आई हैव ओनली 2 पोजीशन टू जनरेट न्यू मॉलिक्यूल। एक यहां लगा सकते हैं और एक यहां लगा सकते हैं। अगर मैं यहां लगा दूंगा तो सेम ही बन जाएगा, विल नॉट ड्रॉ इट। सिंडल आपका रिपीटेड भी है, प्लीज चेक।
अपने स्ट्रक्चर्स में रिपीटेशन फाइंड करना और टफ होता है। तो मुझे तो लगा सब अलग अलग है। बताइए 5 बनेंगे, 5 में 2 कार्बन लगाने हैं, ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, है ना, ऐसा लगा Yes. सकते हैं। सिक्स नहीं हो, किसी से रिपीट नहीं हुआ अभी तक। नाउ विल ट्राई वन मोर। 2 कार्बन एक साथ लगा दिया, बता इसमें कौन सा रिपीटेड है? Sir, first and third. This one is repeated. It is similar to Sir, first one and fourth. first one and fourth one. कैसे? फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं है ना। 4 कार्बन। अच्छा बताओ, C6 में 3 का पॉसिबल हुआ क्या? 3 का पॉसिबल ही नहीं हुआ था। अगर C6 C5 में 3 का पॉसिबल नहीं हुआ और C6 में 3 का पॉसिबल नहीं हुआ, तो C7 में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा, कुछ और भी कार्बन बढ़ गए हैं। इट इज इम्पॉसिबल। तो 4 का ही ट्राई करना है सिर्फ, ऐसे 10 10 10 10। आकांक्षा बताओ, फोर्थ के जो हमने 3 बनाए हैं उसमें कौन सा रिपीटेड है? फर्स्ट एंड सेकंड। किससे फर्स्ट रिपीटेड है बताओ? फर्स्ट किससे रिपीटेड है? इससे। यस सर। और सेकंड वाला किससे रिपीटेड है? देखो, देखना है, सिर्फ देखना है आपको। किससे रिपीटेड है चेक करिए। फिफ्थ के थर्ड से। फिफ्थ के थर्ड से। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल है। अगेन आई विल रिपीट ऑल द स्ट्रक्चर्स। दस 5 कार्बन के बस 4 कार्बन के only one possible. Total is what? 9. You don't have to memorize it. Memorize करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक होमवर्क लिखिए जो मुश्किल होगा, जो जो मैं भी बनाने में मुझे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। C7 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, नहीं पूछते। मतलब 10 मैक्सिमम दे विल आस्क हाउ मेनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, 10 से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते ज्यादा वो। हेलो, हाँ, आप लोग अगर कुछ व्हाट्सएप करेंगे ना तो नाम डाल दीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा। सर कैसे करना और है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप कैसे का मतलब नंबर पे मतलब सर आपका नंबर कैसे, हमारे पास नहीं है। दिया ना अभी। ओके सर, ये नंबर दिया है। रखे रहो, हमेशा नहीं कि परेशान करने के लिए करना है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कर दीजिएगा। जैसे कभी नोट्स सर। अपलोड करना भूल गया मैं, जैसे आज रात में मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, देख के सोने के लिए, तो अभी अपलोड करना भूल जाऊंगा तो मैसेज कर दीजिए, आई विल अपलोड इट। भूल जाऊंगा तो कल सुबह कर दूंगा। ठीक है, अब अपना नेम सेंटर दोनों दे दीजिएगा, किस सेंटर से है किस नेम से है। सर मुझे पहले वाले नोट्स नहीं मिले हैं। कैसे नहीं मिले? लिंक नहीं मिला आपको? कौन है ये? नहीं कौन सर। है बताइए? भाविका। कैसे नहीं मिला होगा आपको? क्लासरूम पे नहीं हो? हूँ ना सर।
तो क्लासरूम, कौन से क्लासरूम पे हो आप? पे लिंक आया है। क्लासरूम पे लिंक होगा बेटा। चलो ना ठीक मैं है फिर सर, मुझे से सर check- कल्याण स्टेशन में नहीं है सर। सर। अच्छा हाँ अच्छा, वही कल्याण सर वीडियो लिंक भी नहीं बाकी। हाँ वीडियो सर, लिंक कल्याण स्टेशन में नहीं है कौन सर में। ओके ओके ओके, मैं चेक करता हूँ रुको, मैं अभी भेज देता हूँ, रुको 2 मिनट रुको। मैं अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, लिंक मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है ना? हेलो, ठीक है सर। Yes. हाँ हाँ अभी लिंक मैसेज करता हूँ, रुको 1 मिनट रुक जाओ। और जूम पे ही है, जो चैट बॉक्स में कुछ कहीं होता है ना, कहाँ होता है चैट? ये चैट, हाँ देखिए, चेक करो, देखो ओपन हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, नोट्स का लिंक है किस नाम से आ रहा है लिंक? सर, 22 KD नोट्स। हाँ सही है। दूसरा देखिए, अगेन आई विल टेल यू, ट्राई टू अवॉइड वीडियो सेशंस। वीडियो में देखना टाइम वेस्टेज है, जो पूरी 2 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ते हैं 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ट्राई टू फोकस ऑन 1.5 आवर, अदरवाइज यू हैव टू फोकस अगेन फॉर 3 आवर्स, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। और क्लास की जो डिस्कशन होती है उसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है, छोटी छोटी चीजों पर डिसाइड होता है। सर सेकंड वाला भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है। हाँ, तो दोनों आप सेव कर लीजिए, सब लोग सेव कर लीजिए। ठीक है, सबको मिल गया? हेलो, यस सबको सर। मिला? यही रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है बेटा। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल बातें करते हैं वो भी सब आ जाता है, अब आने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। हम बीच बीच में इसलिए पॉज कर देते हैं, बट भूल जाते हैं तो सब आ जाएगा। अब आने दीजिए, आज जो आया आने दीजिए। डन, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। जो होमवर्क है, सर इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिंपल, बट गिव अ ट्राई। देखते हैं आपको कितने स्ट्रक्चर बन के निकलते हैं। हाउ मेनी different structures possible for C8H18? किसका फॉर्मूला ये? ऑक्टेन, ऑक्टेन जैसा कुछ, मतलब इसमें डबल बॉन्ड? नो सर, सिंगल बॉन्ड। नो सर, नहीं सिंगल है। बॉन्ड। नो डबल बॉन्ड है ना, तो ये जरूरत नहीं है। तो ये आपको पहले यहाँ इतना तो बताना ही पड़ेगा मुझे, नो डबल और ट्रिपल, नो रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना? नो डबल और ट्रिपल और नो रिंग स्ट्रक्चर, ये आपकी होमवर्क हो गई। एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा छोटी सी थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चन दे दूंगा, ज्यादा टाइम आपके पास बची नहीं है। हाइड्रोजनेशन, ये कभी वर्ड सुने हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस सर। यस सर। मैं सुना है? यस सर। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने नहीं भी सुना है उनके लिए देखिए, ये कौन सी मॉलिक्यूल है बताओ? इथीन। इथीन। तीन। 3। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे कि इथेन बन जाएगा? 2। 2। ठीक है, कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे इथेन बन जाएगा? 2 हाइड्रोजन, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ
हाइड्रोजन और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ही बात है ना? इसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे? CnH2n इसका CnH2n plus 2 CnH2n+2 प्लस 2, ठीक है ना? कोई डाउट? नो सर नो सर। ठीक है। अब हमने आपको रिकॉल करो, आज जो हमने पढ़ा है बेटा, क्लासेस बहुत अच्छी हो रही है, पर आपका मतलब सपोर्ट चाहिए। जहां दिक्कत आती है प्लीज पूछिए, जिसको भी दिक्कत आती है। आई कैन नॉट जज बाय सीइंग द नेम और फेस, आपको बोलनी पड़ेगी आगे आके। अब यहाँ देखना, उल्टा देखो, उल्टा। इन सभी का फॉर्मूला क्या था? C4H8 था। ऊपर फॉर्मूला क्या था? C4H10 था। तो C4H8 में कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे C4H10 बन जाएगा? 2 2, है ना? अब C4H8 अगर फॉर्मूला है तो उसमें या तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? रिंग। रिंग Ring स्ट्रक्चर। दोनों होंगे क्या? दोनों साथ में होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं, ठीक है ना? अगर दोनों साथ चाहिए, दोनों साथ है इसमें देखो, तो कितना लॉस है हाइड्रोजन का? अगर मैं रेफरेंस अल्केन लूं, C4H10 लूं और देखूं C4H6, कितने का लॉस है? 2 हाइड्रोजन्स। 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स। 4। 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो इफ आई वांट टू मेक C4H10 फ्रॉम C4H6, तो C4H6 में मुझे कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे? 2 molecules. 2 मॉलिक्यूल्स। कितने एटम्स ऐड करने पड़ेंगे? 4। 4 atoms. एटम्स। 4। अच्छा, अगर C4H6 में मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा उसमें डबल बॉन्ड होगा क्या? No sir. नहीं Single सर। उसमें रिंग होगा क्या? सर No. नो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। डन यहाँ तक? यस फिर सर। से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C4H6 में कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा हाइड्रोजन के कि C4H10 बन जाएगा? 2 2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। और ऐड करने के बाद उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया मैंने, उसमें डबल बॉन्ड रहेंगे क्या? नो रिंग सर। रहेंगे क्या? रिंग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मतलब ओपन चेन सैचुरेटेड। मैंने सुना है किसी किसी बोर्ड में कार्बन एंड कंपाउंड्स को ही डिस्कार्ड कर दिया गया था, हटा दिया सिलेबस से, शायद ऐसा था क्या? कुछ ओमिट कर दिया गया था कार्बन एंड कंपाउंड्स? सर Polyethylene. कुछ पार्ट Polyethylene ओमिट किया था। ठीक है, पूरा ही ओमिट कर दिया, दिक्कत क्या है? डिड आई मिस एनीथिंग? कुछ आपको लगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है स्टार्टिंग से अभी तक? No sir. सब No, बताया sir. मैंने आपको। कार्बन के बॉन्ड बनते हैं 4 बताया, नाइट्रोजन के बॉन्ड बनते हैं 3 बताया, ऑक्सीजन के बॉन्ड बनते हैं, फिर बॉन्डिंग सिखाया, कनेक्ट करना सिखाया। तो 10th आपने नहीं पढ़ा, चलेगा। आई ओनली एक्सपेक्ट टू नो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी डिवीजन। अदरवाइज एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। इफ यू स्टिल थिंक कि सर ये आपने नहीं समझाया या हमें समझ में नहीं आया, प्लीज पूछिए। आई विल नेवर एक्सपेक्ट यू कि आपको सब कुछ पढ़ के आया हो, नहीं, कभी नहीं। और क्लास में जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो सिंपल ही रहता है। तो आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं सर, ये तो सर ऑब्वियस है, फिर भी आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को कि किसी मॉलिक्यूल में कुछ हाइड्रोजन ऐड करने से वो ओपन चेन सैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, ये डन? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। इस छोटी सी थियरी में क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, देखिएगा। अल्कीन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अल्कीन? Double bond. Double. कंटेन्स 1, है ना? और ये ओपन चेन होता है। ओपन चेन का मतलब रिंग नहीं और नॉट
cyclic. What is the meaning of n-hexane? Straight chain. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगर n-hexane है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n-hexane? बताओ, सब बता रहा हूं मैं आपको। C6H14. C6. C6H14, बिल्कुल सही। तो डिफरेंट अल्कीन जो बनाने वाले हो आप, उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12. ठीक है। ये भी होमवर्क देते हैं आपको, क्योंकि आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है। सब ट्राई करना। ड्रॉ ऑल, ये टफ दे रहा हूं। अगेन मेंटेन करनी है सिर्फ कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बनता है नहीं बनता इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझते हैं चीजों को अच्छे से, क्लास में सीखते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। नहीं बनता है ठीक है, सीख लेंगे। अच्छा, C3H6 अल्केन का फॉर्मूला है क्या? No, sir. Alkene. No, sir. Alkene. अल्कीन का फॉर्मूला है। ये कैसे पता चला कि अल्कीन का ही फॉर्मूला है? CnH2n. Here CnH2n. CnH2n. क्या बात करते हो, आज ही आपने सीखा तुरंत। कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे तो मुश्किल है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? Cn, थोड़ा अलग ब्राइट कलर से लिखते हैं। CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. यहाँ पे CnH2n. CnH2n. क्या CnH2n में अल्कीन ही बनता है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ यार, मतलब समझा नहीं। CnH2n में अल्कीन बनता है सिर्फ? हाँ. Yes, sir. अरे No. अभी मार्क भी कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आप। हो सकता है डिस्प्ले भी बाद में होती है, भी होता है कि मैंने ड्रॉ कर दिया 2 सेकंड के बाद डिस्प्ले उठता है कहीं पे। तो दोस्त कॉम्प्लिकेशन आई नो। अल्कीन तो बनता है, कंफर्म है, पर क्या ये अल्कीन है? ये अल्कीन है? No. No, sir. No, sir. तो जरूरी नहीं sir. कि अल्कीन बनता है। आपको बताया गया कि अल्कीन बनता है, पर अल्कीन नहीं बनता है। ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? अल्कीन है क्या इसमें, बताइए। अल्कीन नहीं है, अल्कीन नहीं है और साइक्लिक रिंग है, वी कॉल इट व्हाट? साइक्लो अल्केन। नाम नहीं बता रहा हूं, इन जनरल नाम बता रहा हूं। ये दोनों क्या है? अल्कीन। Alkene. Alkene. सिमिलरली ये क्या है? अल्कीन। Alkene. और ये क्या होगा? Cycloalkene. साइक्लो अल्कीन। ये भी क्या होगा? साइक्लो अल्कीन। ये क्या होगा? ये मुश्किल है। 2 डबल बॉन्ड है ना? हेलो, Yes. sir. Yes, 2 sir. डबल sir. बॉन्ड है तो इन कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। तो नाम भी बड़ा प्यारा है, अल्का डाइन। डाई क्यों लिखा? 2 डबल बॉन्ड के लिए। इन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डोंट बॉदर अबाउट द नेम, जस्ट टेलिंग यू कि CnH2n जो आपने याद करके बैठा हुआ है कि अल्कीन होगा, वो हमेशा अल्कीन बोलो नहीं होगा. नहीं होगा। Sir, अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होगा बताओ? हाँ बोलो। sir, वो ट्रिपल बॉन्ड है ना वहाँ पे? हाँ, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है? ये सर वाला? फर्स्ट. हाँ, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो सर अल्काइन नहीं होगा? हाँ, ये मेरी गलती है ना, अल्काइन ही होगा ऑब्वियसली। वो तो जल्दबाजी में लिखते हैं बेटा। अल्काइन है ना। कितने पाई बॉन्ड अल्काइन में? 2 पाई बॉन्ड। पाई बताया था, सिग्मा पाई बताया था। Yes, sir. Yes, sir. 1 sigma 2. तो CnH2n-2 अल्काइन का पढ़ा होगा आपने, बट अल्काइन जरूरी नहीं है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज। अब एक पॉसिबिलिटी बचा ही हुआ था हमने आपको। ओके,
हाँ, एक पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, विल डिस्कस। ठीक है, ये सारे ट्राई करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि C3H6 के सिर्फ अल्कीन नहीं बनेंगे, साइक्लिक भी बनेंगे। C4H8 के सिर्फ अल्कीन नहीं बनेंगे, साइक्लिक बनेंगे। ऑल मतलब चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। आकांक्षा तुम आज ही बना के भेजोगे मुझे? आज मत बनाओ, कल बना के भेजना। चलो, टाइम दिया मैंने आपको, ओके सर। कल बना के भेजिएगा। तो आपको डिफरेंट अल्कीन्स बताने हैं और ऑल द स्ट्रक्चर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब बताने हैं। डन? रणिल, हो जाएगा? हाँ सर। Try to finish all the work either by today, tonight only or tomorrow. कल क्लास आपकी है नहीं है, तो आप कल whatever homework you are pending, you are having today, finish it by tomorrow. Don't keep it for the coming class. कि सर सैटरडे क्लास होगी आपकी तो उस दिन बना के रखता हूँ, नहीं। Try to finish today or by tomorrow, खत्म करके रखिए ताकि क्लास के पहले सिर्फ देखें, रिवाइज करें। लेकिन बच्चों की आदत क्या होती है, कितना भी समझाइए वो क्लास के पहले ही करते, फिर बोलते हैं सर भूल गया, सर निकालो तो था, भूल गया। तो सर स्टार्टिंग से छोटी छोटी हैबिट बनाते जाइए, बिकॉज 10th के कंपैरिजन में सिलेबस इज मच बिगर, ये आप पहले से मानिए। इट विल बी नेवर टफ व्हाइल टीचिंग, लेकिन सिलेबस तो बड़ा है, उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक पंक्चुअल बनना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है हृणिल, इतना करना। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके चलिए, थैंक यू, थैंक गुड यू नाइट। सर, गुड Good नाइट। you, sir. Thank you, sir.